Hello, everyone. Today is September 3rd, Sunday. Instead of synergy session, we are going to do a spiritual session today. Thanks to Lokesh. And like I've told some of you, I'm looking forward to it. I have been saying Jai Shri Krishna since I was born, I think. And I just realized that I say it as a greeting, but I'm sure there is more purpose to it than just saying Jai Shri Krishna. So I'm going to let Lokesh take over. Thank you, Lokesh. Thank you very much. Thanks to all of you. And thank you, Synergy, to give us this opportunity. And this was a long time we were planning about it, and here we are today. So, to begin with, we're talking about Bhagavad Gita. Very brief introduction I'll be talking about. As we all know, that we are starting from knowing to little unknown things. What unknown things will be covered by speaker. So, what all I'll be talking, it's everyone knows about it. भगवद गीता में 700 श्लोक हैं, 18 चैप्टर हैं। एक श्लोक धृतराष्ट्र ने बोला है, 41 श्लोक संजय ने बोले हैं, और अर्जुन ने 84 श्लोक बोले हैं, श्री कृष्ण ने 574 श्लोक बोले हैं। पूरे महाभारत जो है 18 दिन चली थी। थोड़ा सा कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं कि कौरव्स में 11 अक्षुणी सेना थी, और उसके बाद भी वो हार गए क्योंकि कृष्ण उनके साथ नहीं थे। पांडवों के पास केवल 7 अक्षुणी सेना थी, और फिर भी वो जीत गए। तो टोटल ऑफ 18 अक्षुणी सेना फॉट, और जिसमें लगभग 45 लाख लोगों ने वॉर लड़ा था, इसलिए उसको महाभारत कहते हैं। सो थोड़ा सा अक्षुणी के बारे में अगर जानना अपन चाहें तो 21,000 कुछ 2,18,700 के करीब एक संख्या उसमें आती है एक अक्षुणी में। तो उसके कितने रथ हैं? 21,870 रथ, हाथी, इतने ही हाथी होते हैं, और लगभग 1 लाख लोग जो है पैदल सैनिक होते हैं। तो इस प्रकार से जो है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है। भगवद गीता इज द सॉन्ग ऑफ गॉड, भगवद गीता, राइट? सो इट इज संग बाय गॉड। 18 चैप्टर्स में डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार से है कि 1st to 6th चैप्टर इज ऑन कर्म योग, 7th to 12th chapter is on bhakti yoga, and 8th to 12th chapter is on Gyan Yoga. So Bhagavad Gita is an instruction manual for our life. This has got nothing to do with any religion. So जीवन के युद्ध सही ढंग से actions कैसे लेना, या what are the do's and don'ts of life, this comes from Bhagavad Gita. It not only teaches us the art of living, but also teaches us the art of leaving this world. Well, I once again welcome you all. We are lucky to be able to join in this program today. जैसा भगवद गीता में भगवान ने बताया है कि 4 प्रकार के लोग ही भगवान को जानना चाहते हैं, या तो जो बहुत दुखी हो, या वो जो अर्थार्थी हो, मतलब धन की अपेक्षा रखते हो, या वो जो इंक्विजिटिव हो, जिज्ञासु, और चौथा है ज्ञानी। भगवान को कौन सा सबसे ज्यादा पसंद है? वो ज्ञानी जो भगवान से कुछ चाहता नहीं है, वो केवल शुद्ध भक्ति करता है, उसके पास केवल वन वे ट्रैफिक है कि वो भगवान की सेवा करना चाहता है और भगवान से प्रेम करना चाहता है, और कुछ वो नहीं चाहता। वो ज्ञानी, ऐसा ज्ञानी भगवान को बहुत पसंद है। तो एक पॉइंट और समझते हैं कि हु इज अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। ये जो ज्ञान है ये पूरा एक गुरु शिष्य परंपरा में हम प्राप्त करते हैं। My all humble obeisances to His Divine Grace, A.C. Swami Srila Prabhupada, our founder Acharya, whoever teaches us how to know God and how to love Him. श्रील प्रभुपाद ने एक बहुत ही खूबसूरत डेफिनेशन दिया है धर्म की। धर्म की परिभाषा, उनका धर्म और रिलीजन 2 अलग अलग चीजें हैं। धर्म की परिभाषा है भगवान के बारे में जानना और भगवान से प्रेम करना। वहां उन्होंने गॉड शब्द का इस्तेमाल करा है, वहां उन्होंने कृष्ण स्पेसिफाई नहीं करा है। मतलब irrespective of your religion, you can use God, you can use Allah, you can use Krishna, you can use anything. So people who claim to be God are all fake. One must be a serious student to learn and know about God. ISKCON is the only movement which can teach us about Krishna and how to love Him by practicing teachings of Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. Our business is only to love God and not to ask God about our necessities.
because necessities are for everyone and everyone gets it, even those who do not have any religion, those who are not following anything. So Bhagavad Gita gives us a value-based education. It makes us emotionally intelligent. Many of us might have read it, but how many have really understood it? So we need a spiritual master or a self-realized soul and to give us this knowledge, and it comes in a Guru Shishya Parampara. So here I take this opportunity to introduce today's guest speaker, Praneshwar Prabhu, and he will be telling us Mahima of this Mahamantra also. Why do we chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare? And let me briefly introduce our guest. What will be the learning objectives? Let me talk about that first. Why to connect with God? What are the benefits of connecting with God? What are the reasons for not connecting God? बहुत से लोग जो नहीं पसंद करते हैं उनके क्या कारणत होते हैं उस पर प्रभु जी चर्चा करेंगे. और हाउ टू कनेक्ट गॉड, थोड़ा सा परिचय प्रभु जी का मैं देना चाहूंगा. प्रभु जी जो है 53 इयर्स उनकी एज है और इस्कॉन से 95 से जुड़े हुए हैं. 97 में आपने इनिशिएशन के लिए तैयारी करी और अगले 4 साल में आपको इनिशिएशन प्राप्त हो पाया. आप राधानाथ स्वामी के डिसाइपल हैं और तब से ये ब्रह्मचारी हैं. 95 से आप ब्रह्मचारी में हैं और वर्तमान में इस्कॉन टेम्पल इंदौर के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं. आपने मास्टर्स इन फिलॉसफी किया हुआ है, वो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद आप पुणे यूनिवर्सिटी के छात्र रहे और मास्टर्स इन फिलॉसफी किया है और वर्तमान में आप पीएचडी कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी में. तो आपका स्वागत है प्राणेश्वर प्रभु प्रेजेंटेशन एंड लेट्स वेलकम प्राणेश्वर प्रभु. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. तो हरे कृष्णा एवरीवन. तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर लोकेश का और आप सबका कि यू हैव गिवन दिस अपॉर्चुनिटी टुडे टू मी, राइट, टू प्रेजेंट दिस टॉपिक, राइट. तो मैं एक चीज़ जो बताना चाहूँगा कि भक्तिवेदांता हॉस्पिटल आप लोगों ने सुना होगा. एक हमारा एक प्रोजेक्ट है जो बॉम्बे में है, मीरा रोड में, वो भक्तिवेदांता हॉस्पिटल. वहाँ बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और बहुत सारे डॉक्टर्स वहाँ पर जो है वो जुड़े हुए हैं कृष्ण भक्ति से, इस्कॉन से. तो इन वन सेंस वो इस्कॉन का ही प्रोजेक्ट है. तो ये भक्तिवेदांता हॉस्पिटल के कई ब्रांचेस भी हैं दूसरे जगह पे, मायापुर और कैलकाटा और वृंदावन. तो कई जगह पर अभी ब्रांचेस भी हैं और बहुत सारे डॉक्टर्स, इवन फ्री आई कैंप्स वृंदावन वगैरह में होते हैं, बरसाना आई कैंप और बहुत सारे ऐसे कैंप्स भी होते हैं. तो आई जस्ट थॉट कि यहाँ पर अभी डॉक्टर्स ज़्यादा हैं तो मैंने जस्ट सोचा कि बहुत सारे डॉक्टर्स, इनफैक्ट हजारों डॉक्टर्स जो है वो इस्कॉन से जुड़े हैं एंड दे आर वेरी हैप्पी अबाउट इट. तो इंदौर में भी वी कंडक्टेड एक्चुअली प्रोग्राम्स फॉर IMA, वो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, राइट. तो डॉक्टर्स के लिए हमने स्पेशल प्रोग्राम्स भी किए. तो जस्ट वांटेड टू इन्फॉर्म कि डॉक्टर्स. प्रभु जी थोड़े से सब लोग थोड़ा उत्सुक हैं ये जानने के लिए कि आप इस जर्नी में कैसे आए. व्हाट इंस्पायर्ड यू टू गेट ऑन दिस जर्नी, टू गेट इन फुल टाइम एज एन इस्कॉन brahmachari, and when you started, finished your qualifications in engineering and then you got into ISKCON, ये क्या जर्नी कैसा रहा आपका, कैसे आपने विचार बनाया इसके लिए? लोकेश, मैं आपको इंटरप्ट करके रावत अंकल को भी नमस्ते बोलना चाह रही थी. रावत अंकल नमस्ते बोल रहे हैं. तो प्राणेश्वर प्रभु जी, आप रावत अंकल हमारे साथ हैं आज, भरत के फादर, डॉक्टर भरत रावत साहब के फादर जो हैं, वेरी सीनियर एंड वेरी लर्नेड पर्सन. प्रभु जी, मैं आपको डॉक्टर रावत साहब के बारे में बताना चाहूँ तो आपने जो है रीइंकार्नेशन के ऊपर बहुत ही खूबसूरत पुस्तक लिखी है. ओके. ये पुस्तक जो है रीइंकार्नेशन की, डॉक्टर रावत साहब ने पुस्तक लिखी हुई है. वंडरफुल, वंडरफुल. कितना उनका रिसर्च वर्क है और करीब 10 से ऊपर उनके गाइडेंस में जो है लोगों ने रीइंकार्नेशन के ऊपर स्टडी किया हुआ है.
फैंटास्टिक फैंटास्टिक। जी, तो बहुत बहुत स्वागत है रावत साहब का। जी प्रभु जी। मैं Yes. एक और बार घंटी बजाऊंगी। अब हम सुनते हैं आपको प्रभु जी, आपकी तरफ से जो भी आप विजडम दे सकते हैं हमको दीजिए। जी जी, थैंक यू छाया जी, थैंक यू। यस, तो ये प्रश्न बहुत बार पूछते हैं लोग मेरे से कि, और खास करके लोग ये कहते हैं कि इंजीनियरिंग करने के बाद और आप एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे थे तो वो छोड़कर जो है आप इस ओर क्यों चले गए। तो एक शब्द में अगर मैं इसका उत्तर दूं तो मैं ये कहता हूं कि दिव्य ज्ञान, या दो शब्द जो भी है हाँ, दिव्य ज्ञान, राइट। शॉर्ट एंड स्वीट आंसर ये है, राइट। तो थोड़ा सा संक्षेप में मैं बता सकता हूँ कि मैं कैसे जुड़ा। एक्चुअली मैं बॉम्बे में आई वाज वर्किंग, राइट। तो जब मैं काम कर रहा था तो मेरे कुछ कजिन ब्रदर्स हैं, वो इस्कॉन जुहू पहुंच गए बिजनेस के चलते। उनका उनका हाउस कीपिंग का बिजनेस था, तो वो वहां पहुंच गए। तो वहां पर कुछ वो बिजनेस रिलेटेड काम कर रहे थे, तो दे गॉट इनवाइटेड टू अ यूथ प्रोग्राम। वो यंग थे, यूथ थे, तो यूथ प्रोग्राम के लिए इनवाइट किए उन्हें। तो पहली बार वहां पे जुहू में यूथ फोरम का प्रोग्राम होने वाला था, और कुछ इनफैक्ट कुछ विदेशी थे, दे वर फ्रॉम साउथ अफ्रीका, तो वो एक्चुअली ये प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे थे। तो सो माय कजिन ब्रदर कॉल्ड मी एंड सेड व्हाई डोंट यू जॉइन। तो उस टाइम पे आई वाज कंप्लीटली मटेरियलिस्टिक एंड तो मैंने कहा कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है आने में। देन माय कजिन ब्रदर सेड कि वहां से हम चलेंगे, हम पहले सत्संग में चलेंगे, थोड़ा सा अटेंड करेंगे, और उसके बाद फिर नजदीक ही जुहू चौपाटी है, और चौपाटी में भेलपुरी, सेवपुरी, चाट, ये सब बहुत अच्छा मिलता है। और मैंने बहुत सुना था इसके बारे में, और कभी गया नहीं था बॉम्बे में रहते हुए भी। तो मैंने कहा कि ये अच्छा मौका है। मैंने कहा ठीक है, मैं आऊंगा फिर। तो एक और हमारे कजिन ब्रदर थे, तो तीन जो हम लोग थे। तो फर्स्ट टाइम हम लोग, मैं इस्कॉन गया और मैंने वो प्रोग्राम अटेंड किया, और मुझे प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। वो कोई विदेशी थे, कोई यूरोपियन थे, तो वो एक्चुअली लेक्चर दे रहे थे। और लेक्चर के बाद जो साउथ अफ्रीकन जो कंडक्ट कर रहे थे प्रोग्राम, उनसे मेरी बहुत बहस हुई। मैं देर रात तक बहस किया, मैंने 11 बजे रात तक बहस किया, चौपाटी चाट वगैरह जो सब भूल गया कहीं कहीं गए नहीं हम लोग, और मैं जस्ट बहस करता रहा, क्योंकि आई वांटेड टू प्रूव देम रॉन्ग। तो आई यूज माय फुल इंटेलिजेंस डिबेट करने में। गलत गलत था ये अप्रोच, ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन आई डिड दैट। बट ये जो साउथ अफ्रीकन डिवोटीज थे, बहुत पेशेंटली वो मेरे प्रश्नों का उत्तर देते रहे, और वो विदाउट एनी फॉल्स ईगो। तो उस तरह से उनने जीत लिया मुझे। 11 o'clock नाइट आई सरेंडर, और उसके बाद फिर एवरी वीक आई स्टार्टेड गोइंग टू द लेक्चर्स एंड ऑल्सो। धीरे 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 समझ में, भगवत गीता समझ में आई, और भगवत गीता जब समझ में आई तो ज्ञान के बाद फिर वैराग्य आता है, राइट। वैराग्य फॉलोज ज्ञान, फर्स्ट नॉलेज देन रिनंसिएशन। एंड व्हाट इज वैराग्य? वैराग्य मीन्स विशेष रूपेण राग, है ना। वैराग्य विशेष रूपेण, सो वैराग्य में भी अटैचमेंट है, बट वो सुपीरियर अटैचमेंट, अटैचमेंट टू सुपीरियर थिंग्स। कुछ और अच्छा मिलता है तो हम नीचे वाली चीजें जो है आसानी से छोड़ सकते हैं, उसमें घाटा नहीं होता छोड़ने में। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसके पास कुछ खिलौना होता है, लेकिन जब वो बड़ा होता है तो उसको और अच्छी चीजें मिलती है, तो वो खिलौना आसानी से छोड़ सकता है, उसे कोई दुख नहीं होता है छोड़ने में। हाँ। और फिर मुझे बाद में पता चला इस्कॉन में कि कुछ छोड़ने की आवश्यकता है ही नहीं, जोड़ने की आवश्यकता है, राइट। तो अधिकतर हमारे जो इस्कॉन में फॉलोअर्स हैं, 650 मंदिर है पूरे वर्ल्ड में, और 99% जो है गृहस्थ हैं, जो कि फैमिली रखते हैं, अपना कामकाज है, स्टडीज है, बिजनेस है, सर्विस है,
जॉब है, वो सब कुछ रखते हुए भी जैसे डॉक्टर लोकेश है ना, सब कुछ है उनका, और साथ में कृष्ण भक्ति को जोड़ देना है. तो इट्स ऑल अबाउट एडिंग, राइट. So this is how I got linked actually, and it's been 27 years now, and I'm super happy that I'm a member of such a what is it, society. Yeah. तो प्रभु जी, ये अपन आज के विषय की ओर बढ़ते हैं. जी. भगवान के बारे में आप हमें बताएं कि कैसे हमने इसकी तरफ हमें आकर्षित तो बहुत करता है. श्री कृष्ण का नाम ही अपने आप में सर्वाकर्षण करने वाले हैं. जी. तो प्रभु जी इसके बारे में बताएं हमें. फाइन. यस. तो 4 प्रश्न है जिसका उत्तर हम लोग इस टॉपिक में देना चाहेंगे. सो टॉपिक बेसिकली है सेक्रेड कनेक्शन. व्हाई शुड वी कनेक्ट विद गॉड? क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है, एंड नॉट ओनली आजकल की जनरेशन, जो इंटेलेक्चुअल्स है, वो जानना चाहते हैं कि लॉजिकल रीजंस क्या है, साइंटिफिक रीजंस क्या है कनेक्ट होने के पीछे. ब्लाइंड फेथ नहीं होना चाहिए, अंधविश्वास से कनेक्ट नहीं होना है भगवान के साथ. तो कुछ लॉजिकल रीजंस होनी चाहिए, साइंटिफिक रीजंस होने चाहिए. गीता जो है वो साइंस है. इट इज अ साइंस. साइंस यानी अंधविश्वास नहीं. इट्स नॉट सिंपली बेस्ड ऑन फेथ, इट्स बेस्ड ऑन साइंस. तो इट इज हायर साइंस, हायर डायमेंशनल साइंस, स्पिरिचुअल साइंस, सटल साइंस, सूक्ष्म, लेकिन समझ सकते हैं. समझने का प्रयास करना चाहिए, और फिर भगवान के ऊपर, अगर भगवान चाहे तो हमें समझ में आएगा. साधु शास्त्र गुरु, इनके माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करना चाहिए, राइट. तो एंड देन इफ वी अंडरस्टैंड भगवत गीता, इफ वी अंडरस्टैंड साइंटिफिकली कि क्यों भगवान के साथ जुड़ना है, देयर कैन नॉट बी एनीथिंग बेटर देन दैट. ये डायमेंशन को हमारे जीवन में ऐड करना है. स्पिरिचुअल डायमेंशन बहुत जरूरी है, और वो भी किस तरह से ऐड करना, ये भी जानना जरूरी है. वो भी एक साइंस है. ये नहीं है कि हम अपने तरीके से जुड़ेंगे. नो, देयर इज अ प्रोसीजर, देयर इज अ प्रॉपर प्रोसीजर टू फॉलो. कोई भी चीज अगर रिजल्ट चाहिए तो एक प्रॉपर प्रोसीजर अगर फॉलो करें तो रिजल्ट मिलता है, राइट. कोई भी केमिकल इक्वेशन है, केमिकल कॉम्बिनेशन है, उसका भी एक तरीका है, राइट. तो एनीथिंग, एनी प्रोसेस, इट हैज अ प्रॉपर प्रोसीजर. अगर दूध से माखन भी निकालना है तो उसका एक प्रोसीजर, राइट. चंद्रयान अगर जाना है, अगर, राइट, देयर इज अ प्रॉपर प्रोसीजर. कोई ये नहीं कह सकता कि ठीक है मैं भी चांद पे चला जाऊंगा ऐसे ही. नहीं, यू हैव टू स्टडी व्हाट इज एस्ट्रोनॉमी, यू हैव टू स्टडी. तो उसी तरह से ये भी एक साइंस है, स्पिरिचुअल साइंस. तो ये 4 प्रश्नों का उत्तर हम लोग अभी आज देखने का प्रयास करेंगे, एंड आई विल ट्राई टू कवर इट इन हाफ एन आवर, एंड देन वी कैन हैव सम क्वेश्चन आंसर्स, राइट. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई टू कनेक्ट विद गॉड, राइट. व्हाई टू कनेक्ट विद गॉड. तो इफ वी गो जस्ट 5000 years बैक, जैसे डॉक्टर लोकेश जो है वो महाभारत के विषय में बता रहे थे, जो कुरुक्षेत्र की जो लड़ाई है उसमें हम लोग देख सकते हैं बहुत बड़ी लड़ाई थी. इट वॉज अ वर्ल्ड वॉर. बताया जाता है कि ये जो 2 वर्ल्ड वॉर हुए हैं उसके पहले भी वर्ल्ड वॉर हुए. जो रामायण में हुआ था वो भी एक तरीके से वर्ल्ड वॉर, और जो कुरुक्षेत्र में हुए 5000 साल पहले हुआ वो भी वर्ल्ड वॉर. तो इस वर्ल्ड वॉर में हम लोग देख सकते हैं कुछ चीजें उसमें सीख सकते हैं. जैसे डॉक्टर लोकेश बता रहे थे कि कौरवों के पक्ष में क्या क्या था. कौरवों के पक्ष में बड़े बड़े महारथी थे, जैसे भीष्म पितामह. सब लोगों ने सुना है, वर्ल्ड फेमस है भीष्म पितामह, राइट. खास करके महाभारत, B.R. चोपड़ा का महाभारत जो है, इतना जब भी चलाओ तो वो हिट हो जाता है. तो उसमें हमने देखा भीष्म पितामह बड़े बड़े फाइटर्स थे कौरवों के साइड पे. भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, राइट. और उतने नहीं, राइट. ये कैसे थे, इन्हें
ये ऐसे योद्धा थे, इन्हें ये नहीं पता था कि पराजित क्या होता है, मतलब डिफीट क्या होता है, इन्हें पता नहीं। दे डोंट नो व्हाट इज डिफीट। ये दिया है, श्लोक में दिया है, अपराजिता। दे डोंट नो व्हाट इज डिफीट, दे ऑलवेज वन। युधिष्ठिर महाराज को जाकर पूछना पड़ा, भीष्म पितामह से पूछना पड़ा, द्रोणाचार्य से पूछना पड़ा कि पितामह, आचार्य जी आप प्लीज बताइए कि आपको कैसे हरा सकते। ये महाभारत में दिया है। ये पहला वार होगा जिसमें कोई विरोधी पक्षी जाकर पूछ रहा है किसी से कि आपको कैसे हरा सकते हैं, जरा प्लीज आप ही बताइए, क्योंकि हमें मालूम नहीं है आपको हराना कैसे। ये 10वें दिन जब भीष्म पितामह इतने लड़े, इतने लड़े, इतने लड़े, ऐसे लड़े, जाकर पूछना पड़ा उनसे कि प्लीज आप ही बताइए आपको कैसे हरा सकते। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि देखो, अगर मैं लड़ रहा हूं तो बहुत मुश्किल है जीतना, आप लोगों को बहुत हराना मुश्किल है, लेकिन एक काम आप कर सकते हैं, अगर मैं लड़ना छोड़ दूं अगर, तो आप कैसे लड़ना छोड़ेंगे? तो कोई स्त्री अगर मेरे सामने आ जाए, या फिर वो पहले जन्म में भी स्त्री रही हो, तो फिर मैं नहीं लड़ूंगा, मैं अपने अस्त्र जो है नीचे रख दूंगा। ये बताना पड़ा भीष्म पितामह। द्रोणाचार्य को पूछे कि सर आपको कैसे हराया जाए, तो द्रोणाचार्य भी यही बोले कि जब तक मैं लड़ रहा हूं तो असंभव, जस्ट नॉट पॉसिबल। तो बोले एक तरीका है, लेकिन मैं अगर कोई दुखद समाचार सुन लूं अगर, तो मैं लड़ना छोड़ दूंगा। राइट, तो उन्होंने हिंट दिया, और वही हिंट बाद में काम आया। तो कहने का अर्थ है कि ये ऐसे ऐसे फाइटर्स थे। राइट, और कौन था? दुर्योधन खुद महारथी थे, और उनके 99 कौरव भाई थे, साथ में जैसे डॉक्टर लोकेश बोले 11 अक्षौहिणी थे। अब इतना ही नहीं, भगवान कृष्ण की सेना, नारायणी सेना भी कौरवों के पक्ष में, क्योंकि भगवान से जब दुर्योधन और अर्जुन गए थे मांगने के लिए, तब अर्जुन भगवान को मांग लिए। भगवान ने कहा मैं लड़ूंगा, मतलब मैं निहत्था रहूंगा, मैं वेपन्स नहीं उठाऊंगा, अस्त्र शस्त्र का उपयोग नहीं करूंगा। फिर भी अर्जुन ने चुन लिया, और लेकिन दुर्योधन ने नारायणी सेना चुन ली। तो नारायणी सेना भी थी, राइट, और साथ साथ में पूरी पृथ्वी थी दुर्योधन के पास। द होल वर्ल्ड बिलोंग टू हिम। और यहाँ पे पांडवों के पास क्या था? पांडवों के पास एक गांव भी नहीं था। क्यों? क्योंकि दुर्योधन ने जब 5 गांव मांगा था, तब मना कर दिया। तो दुर्योधन ने आधा राज्य तो छोड़ो, बोले 5 गांव भी नहीं दूंगा, और सुई के नोक के बराबर भी जमीन दूंगा नहीं। तो पांडवों के पास सुई के नोक के बराबर जमीन नहीं थी, दे हैड जीरो। तो दुर्योधन के पास सब कुछ था, लेकिन एक व्यक्ति उनके पक्ष में नहीं, बस। और पांडवों के पास जीरो था, लेकिन एक व्यक्ति उनके पक्ष में था। Right? We all know who we are talking about. It's a very practical example. Very practical. Only Lord Krishna बस दुर्योधन के पक्ष में नहीं थे, और ये this made the difference. So what can we learn from this? Right? So we can learn कि अगर हम दुर्योधन जैसा भी रहे, I don't think anybody can be in that position. Having the whole world, 11 Aksoni fighters, so many Maharathis, right? We can't be in that position. But even if you are in that position and you are not connected with Krishna, भगवान के साथ connected नहीं अगर, तो whatever you have will eventually go. दुर्योधन lost his brothers. सारे 99 brothers गए, और वो खुद भी गए, प्राण तक नहीं रहा. What to speak of other things? Practical चीजें हैं, right? These are very practical things. And Pandav, all 5 Pandavas were alive. And पांडवों के पास zero था before war, and after war they had the whole world. What can we learn from this? That even if you have nothing, you can get everything if you are connected with Krishna. This is a message which we can learn. And
वी सी महाभारत में जो दिया हुआ है वर्णन कुरुक्षेत्र की लड़ाई का, कि बार बार भगवान कृष्ण ने बचाया, बार बार, कितनी बार बचाया है। सर्प अस्त्र, नारायण अस्त्र, वैष्णव अस्त्र, भीष्म के 5 बाण, वो भी थे। भीष्म के 5 बाण, कर्ण का शक्ति बाण जो अर्जुन को मारने के लिए दिया था, उसका भी प्लान बना दिया भगवान, राइट। वहां तो ऐसे अनगिनत उदाहरण है जहां पर भगवान कृष्ण ने पांडवों को बचाया। दे वॉन द वॉर। तो इवन जब वो लड़ाई के बाद, कुरुक्षेत्र की लड़ाई के बाद भी थोड़ा सा विवाद हुआ, विवाद यानी जब पांडव डिस्कस कर रहे थे कि किसके कारण युद्ध जीता है, तो वो बार्बरिक के पास गए। घटोत्कच के जो बेटे थे, उनसे पूछा। घटोत्कच का सर, सॉरी, बार्बरिक का केवल सर था, क्योंकि बार्बरिक की इच्छा थी कि वो कुरुक्षेत्र की लड़ाई देखे। तो बार्बरिक का सर जो था वो पूरा विटनेस था पूरे वॉर का। तो उनसे पूछा कि आपको क्या लगता है, आपका ओपिनियन क्या है कि किसके कारण युद्ध जीता है। तो उस टाइम पे बार्बरिक कहते हैं कि ये तो मुझे मालूम नहीं है किसके कारण जीता, लेकिन मैं एक चीज बता सकता हूं कि पूरे युद्ध में मुझे केवल कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही दिखाई दिया जो सबको मार। दिस आर बार्बरिक्स वर्ड्स, है ना। तो बेसिकली पांडवास वन because Krishna was on their side. Duryodhan and Kauravas did not win the war even after being so powerful, because Krishna was not on their side. So this is one of the reasons why we should connect with God. If you want to win the war of life, then भगवान के साथ कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। फिर इसके बाद हम लोग दूसरे सवाल पर आते हैं, मुझे क्या लाभ मिलेगा भगवान से कनेक्ट होकर, या भगवान की पूजा कर। तो ये देयर इज नो प्रॉब्लम आस्किंग दिस क्वेश्चन, बिकॉज हम सब जो है इन वन सेंस वो वाला क्वेश्चन है, व्हाट्स इन इट फॉर मी, व्हाट्स इन इट फॉर मी, क्या मिलने वाला है मुझे, राइट। so we can look at this, now we can try to answer this question, right। तो अगर कोई इंटेलिजेंटली अगर स्टडी करे भगवत गीता को, तो उन्हें पता चलेगा कि लाइफ के उलझनों को सुलझाने के लिए भगवान की जरूरत जरूर पड़ेगी। कुछ छोटे उलझन है वो हम लोग आसानी से सुलझा देते हैं, लेकिन इवन अर्जुन जो कि मोस्ट पावरफुल वॉरियर ऑन अर्थ थे, वो भी स्ट्रेस में आ गए कुरुक्षेत्र की लड़ाई के पहले, और भगवान को एक बैटल फील्ड को क्लासरूम में बदलना पड़ा। बैटल फील्ड वॉज चेंज इनटू क्लासरूम। जस्ट इमेजिन हम लोग को अगर कोई बुलाए युद्ध के मैदान में और गीता का पाठ पढ़ाए हम तो नहीं जाएंगे, राइट। लेकिन दिस इज व्हाट हैपेंड ऑन द बैटल फील्ड। भगवत गीता का ज्ञान जो है अर्जुन को दिया गया, एंड ही वॉज इन स्ट्रेस। अर्जुन हैड द स्किल बट नॉट द विल टू फाइट। पूरा स्किल था, he was the most skilled person, skilled in warfare, but he didn't have motivation to fight. अक्सर ऐसा होता है कि मोटिवेशन नहीं है लोगों के पास, तो मालूम होते हुए भी, स्किल होते हुए भी कुछ कर नहीं सकते। So that's why भगवत गीता is a motivational handbook. It is a stress management handbook. पूरे स्ट्रेस के सिम्टम्स अर्जुन के थे, पूरे स्ट्रेस के सिम्टम। वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते, गांधीवम संसते हस्तात्वक चैवा परिदायते। सिम्टम्स, ये स्ट्रेस के सिम्टम्स है पूरे। माय फुल बॉडी इज ट्रेम्बलिंग, अर्जुन कहता है, राइट। माय बॉडी इज बिकमिंग हॉट, टेम्परेचर बढ़ रहा है, मेरा मुंह सूख रहा है। ऑल सिम्टम्स ऑफ पैनिक एंड स्ट्रेस। एंड देन अर्जुन सेज, आई एम नॉट गोइंग टू फाइट, आई एम पुटिंग माय गांधीवा डाउन, नो मोटिवेशन। The whole Bhagavad Gita, when Krishna finishes Bhagavad Gita, and Arjun becomes super motivated to fight and do his duty. Right? So we can see here one more thing which we can learn from the first and last shloka of Bhagavad Gita. First and last shloka. तो पहला श्लोक है वो क्या है? धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः
मामका पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर धृतराष्ट्र? धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं संजय से, संजय सेक्रेटरी है, तो संजय से पूछ रहे हैं कि युद्ध के मैदान में मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र एकत्रित होकर क्या किए। अब दिस इज अ वेरी सिली क्वेश्चन। अगर वो ये पूछे अगर कि इंडिया और पाकिस्तान जो है वो क्रिकेट के मैदान में एकत्रित हुए और क्या किए, अब क्या करेंगे? वो क्रिकेट खेलेंगे और क्या करेंगे? तो दिस क्वेश्चन जो है, ये जो प्रश्न है, इसके पीछे कुछ प्रश्न है, हिडन क्वेश्चन एक, और वो हिडन क्वेश्चन संजय समझ गए। तो वो हिडन क्वेश्चन क्या है धृतराष्ट्र का? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। संजय, ये जो कुरुक्षेत्र है ये धर्म क्षेत्र है, और मेरे जो बच्चे हैं वो अधर्मी है। कहीं ये धर्म क्षेत्र का कुछ विपरीत इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा वॉर के ऊपर? तुम्हें क्या लगता है कौन जीतने वाला है? दिस इज द हिडन क्वेश्चन। हाउ डू यू नो दिस इज द हिडन क्वेश्चन? क्योंकि जो लास्ट श्लोक है भगवत गीता 18.78, यत्र योगेश्वरा कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूति ध्रुव नीतिर्मतिर्मम। यहां पर संजय जो है धृतराष्ट्र को उत्तर दे रहे हैं। क्या उत्तर दे रहे हैं? कि जहां पर योगेश्वर कृष्ण है, यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहां पर योगेश्वर कृष्ण है, जहां पर उनका भक्त अर्जुन जैसे भक्त है, यत्र पार्थ धनुर्धरः, जहां कृष्ण है और कृष्ण के भक्त है, वहां पर चार चीजें हमेशा रहेंगी। तत्रा यानी वहां पर क्या चार चीजें? तत्रा श्री, पहला चीज है श्री। श्री यानी लक्ष्मी, और लक्ष्मी किसे नहीं चाहिए? एवरीबडी इज रनिंग आफ्टर लक्ष्मी, राइट? तत्रा श्री विजयो, विजय। दूसरी चीज है विजय। हु वांट्स टू फेल? एवरीवन वांट्स टू विन। तत्रा श्री विजयो भूति। भूति मीन्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर। मैं ये चार चीजें पूछने वाला हूं आप लोगों से भी, कौन सी चार चीजें? तो पहला है, क्या है? फर्स्ट इज लक्ष्मी, सेकेंड इज विजय, विक्ट्री, थर्ड इज भूति मीन्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर, अद्भुत शक्ति, एंड फोर्थ इज नीति, मोरालिटी, धर्म। तो जहां कृष्ण है और कृष्ण के भक्त है, ये चार चीज हमेशा वहां पर रहेंगे। एनीबडी वांट्स टू शेयर which are the four things? Just making sure कि right things are श्री विजय और शक्ति का वर्ड में भूल गई, और मोरालिटी। very good and धर्म, very good, yes, thank you मैंने yes, नोटपैड रखा है, वो it helped me out a little bit. fine, taking notes is wonderful, yeah. Anybody else? हाँ, हम बता सकते हैं Please, तो yes. लक्ष्मी, Yeah. लक्ष्मी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी द पावर, Extraordinary एंड power, विक्ट्री विजय, victory, vijay, very good, and fourth एंड नीति मतलब मोरालिटी। नीति, morality, धर्म। Fantastic, very good, thank you, yes. These four things, ये चार चीजें जो है वो रहेंगी जहां पर कृष्ण है और कृष्ण के भक्त हैं, right? So these four, so if we want these four things in our life, right, तो हमें कृष्ण से कनेक्ट होना पड़ेगा, उनका भक्त बनना पड़ेगा। जैसे कि अर्जुन थे, अर्जुन के दो क्वालिफिकेशन थे। अर्जुन was the best in his field, he was the best and he practiced and he worked hard. There is no substitute for hard work. मेहनत करना पड़ेगा। भगवान ने ये नहीं कहा अर्जुन से कि देखो मैं आपका दोस्त हूं और मैं भगवान हूं, आप बैठ जाओ मैं लड़ूंगा। नहीं, लड़ना तो आपको पड़ेगा, लेकिन मैं आपके साथ हूं, इसलिए ये चार चीजें आपके साथ रहेंगी। लक्ष्मी, श्री, मतलब द गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून, विजय, विक्ट्री, एंड सो दीज आर संजय's words, right? So right, this is very एक चीज हम लोग सोच सकते हैं कि संजय तो सेक्रेटरी थे। जनरली जो सेक्रेटरी होते हैं वो
बॉस जो कहता है वो है ना, वो कहते हैं, बॉस ने कह दिया रात है तो रात है, अगर दिन है तो दिन है। लेकिन संजय ऐसे नहीं थे। धृतराष्ट्र ने पूछा कौन जीतने वाला है, बट व्हाट आंसर ही वाज एक्सपेक्टिंग, ही वाज एक्सपेक्टिंग कि मेरे पुत्र जो है वो जीतेंगे। लेकिन क्लियरली जो है संजय कह रहे हैं कि सॉरी सर, कोई चांस नहीं है आपके पुत्र को जीतने का, बिकॉज जहां कृष्ण है और कृष्ण के भक्त हैं, अर्जुन जैसे शुद्ध भक्त हैं, वहां पर ये चार चीजें तो रहेंगी ही, राइट। तो दिस इज अनदर रीजन, these are the four labs, four profits which we can get by connecting with the Lord, है ना, with Lord Krishna, राइट। श्रील प्रभुपाद जी जो इस्कॉन के फाउंडर हैं, राइट, तो वो एक बहुत सुंदर एग्जांपल देते थे, राइट। वो कहते थे कि 1,00,000, 1 followed by how many zeros? 1,00,000? 5 5 zeros. zeros, right? Yeah, right. 1 crore followed by how many zeros? 7. I think 7. Zeros, right? So if we, right, 7 zeros, correct, yeah. So 1,00,000 means 1 on the left hand side, followed by 5 zeros. 1 crore means 1 on the left hand side, followed by 7 zeros. जीरो बढ़ाते जाएंगे तो वैल्यू बढ़ता जाएगा। 1 बिलियन पता नहीं कितने जीरो से, लेकिन वो लेफ्ट हैंड साइड में वो 1, लेफ्ट हैंड साइड का जो 1 है वो अगर निकाल दिया जाए तो वो 1,00,000 जो 1 फॉलोड बाय 5 जीरोस है, उसमें एक लेफ्ट हैंड साइड का 1 निकाल दिया जाए तो क्या वैल्यू है? 0. 0। 1 करोड़ का जो 7 जीरोस है, 1 फॉलोड बाय 7 जीरोस, उसका 1 निकाल दिया जाए, उसका वैल्यूज क्या है? 0. 1 बिलियन में पता नहीं कितने जीरो है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड का जो 1 है वो निकाल दिया जाए तो क्या वैल्यू है? 0. 0। सो श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि दैट 1 इज कृष्णा, दैट 1 इज गॉड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट फिगर है, फर्स्ट, वो अगर निकाल दिए जाए तो हम अपने जीवन में कुछ भी कर रहे हैं उसकी वैल्यू 0 बन जाती है। In one sense, we can understand this. How we can understand this is that at the time of death, we lose everything. Everything becomes 0 again. हम PhD भी है, अगर next life हमें फिर से, वो भी अगर मनुष्य का जन्म मिला तो A for apple, B for bat. It's not that we'll start with PhD again. Back to 0. Back to square 1. तो प्रभुपाद जी कहते थे वो एक, एंड वो उस एक की प्रायोरिटी क्या है? टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। उस एक का पोजीशन हम लोग अगर राइट हैंड साइड पे ले ले, अगर उसको एक से दूसरे पोजीशन में ले ले तो उस 1,00,000 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10,000. 10,000। और अगर जितने हम लोग इस तरफ ले लेंगे, राइट, जितना उसका प्रायोरिटी कम करेंगे उतना ही हमारे लाइफ की वैल्यू भी जो है कम हो जाएगी। Therefore, topmost priority is spiritual life. Spiritual life और material life दोनों जब साथ में चलती, जैसे एक ट्रेन में 2 ट्रैक होती हैं, तो दोनों together, right? ISKCON में भी there are hundreds and thousands of IITians, IIT, right? Everybody knows IIT, right? तो IITians भी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर्स जुड़े हैं, लॉयर्स जुड़े हुए हैं, दोनों चीजें करते हैं, अपना प्रोफेशन भी कर रहे हैं और साथ साथ में स्पिरिचुअल लाइफ भी। एंड दैट इज कंप्लीट लाइफ, दैट इज कंप्लीट नॉलेज। तो प्रभु जी, एक मिनट, एक चीज बताएं कि स्पिरिचुअलिटी को अगर कम शब्दों में समझने की कोशिश करें तो कैसा, व्हाट, क्योंकि आज की तारीख में अपन देख रहे हैं बहुत सारे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो कुछ गुमराह भी हो रहे हैं, कर रहे हैं, तो स्पिरिचुअलिटी मतलब क्या समझा जाए इससे? या सो स्पिरिचुअलिटी यानी अंडरस्टैंडिंग oneself and understanding God, understanding this world and the connections between these three things: understanding oneself, understanding God, understanding this world and the connections, the right connections between these three things. ये 3 चीजें अगर हम लोग को समझ में आए, सोल, गॉड
and this world and the connection between them, then that is spirituality. And spirituality is basically about self-realization and God realization. आत्म साक्षात्कार, भगवान का साक्षात्कार, ये एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी. एंड इट डजंट मैटर वन इज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जस्ट डजंट मैटर. क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इज द बॉडी. बट यहाँ स्पिरिचुअलिटी की बात आती है तो फर्स्ट लेसन ये है कि यू आर नॉट दिस बॉडी. पहला लेसन ही है. सेकेंड चैप्टर में भगवान कहते हैं यू आर नॉट दिस बॉडी. बात ही खत्म वहां. तो इट्स नॉट अबाउट सम पर्टिकुलर रिलीजन. नो, स्पिरिचुअलिटी इज अबाउट द सोल. एंड सोल तो सब लोग हैं, आत्मा सब लोग. सो आई जस्ट maybe we have some I think shortage of time, so I'll go to the fourth what to say question, and then if we have time I'll take the third one also. I have time, लेकिन आप लोग देखिए कैसे. तो सबसे अच्छा तरीका, हाउ डू वी कनेक्ट विद गॉड, सबसे अच्छा तरीका क्या है भगवान से कनेक्ट होने का. So what is the answer to this is there are a lot of ways to connect with God. Just like internet connection, there are a lot of ways. अभी है ना मोबाइल से कनेक्ट हो सकते हैं. पहले वो डोंगल आता था, डोंगल, हाँ राइट, शुरुआत में राउटर आता था, राइट. लेकिन हमें ये पता है कि सबसे अच्छा कनेक्शन जो है वो ब्रॉडबैंड से होता है, एटलीस्ट इन इंडिया. At least in India, I can say that we have the best connection, internet connection is through broadband. Why am I giving this example? Because there are different ways to connect with God. Even ये भी दिया हुआ है कि 4 जो युग है, सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, चारों में भगवान के साथ कनेक्ट होने के अलग अलग तरीके हैं. एक श्लोक है, कृते यध्यायतो विष्णु त्रेतायम यजतो मखै द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्हरि कीर्तना. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? कि सत्ययुग में अगर भगवान के साथ कनेक्ट होना है तो ध्यायतो विष्णु, ध्यान के मार्ग से कनेक्ट होते थे. त्रेतायम यजतो मखै, त्रेता युग में यज्ञ के मार्ग से, बड़े बड़े यज्ञ जो है होते थे त्रेता युग में. द्वापरे परिचर्यायाम, तो परिचर्या मतलब टेंपल वर्शिप, डीटी वर्शिप, मूर्ति पूजा, बड़े बड़े मंदिर होते थे और मूर्तियां पूजा होती. अभी तो छोटे छोटे मंदिर है. कलौ तद, लेकिन कलयुग में कनेक्शन सबसे बेस्ट कैसे कर सकते हैं? कलौ तद हरि कीर्तना, कीर्तन यानी भगवान का नाम लेना. तो व्हाट इज इट? इट इज बेसिकली ए प्रेयर, राइट. तो भगवान का नाम लेना, एंड भगवान का नाम कहीं पर भी, इट्स लाइक एटीएम, एनी टाइम मेडिटेशन, like ATM, एनी टाइम मेडिटेशन. क्यों? मंदिर जाना है, कभी कभी जा नहीं सकते हैं. सत्संग हर बार हो नहीं सकता, कभी कभी कुछ राइट अवेलेबल हो नहीं सकते हैं. तो लेकिन एक चीज, एक कनेक्शन हमेशा रहता है 24 आवर्स, एंड दिस इज द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट वाईफाई कनेक्शन, प्रेयर, कीर्तन. कीर्तन इज अ प्रेयर. एनी टाइम जस्ट कॉल आउट हिज नेम. एंड राइट, सो जैसे टेक्नोलॉजी है, आज टेक्नोलॉजी ऐसी है कि आप लोग कतार में बैठे हुए हैं और मैं इंडिया में बैठा हुआ हूं, एंड वी आर कम्युनिकेटिंग. इजंट इट अ मिरेकल? इट्स अ साइंटिफिक मिरेकल. अगर ये हो सकता है तो भगवान सुपीरियर टेक्नोलॉजी क्यों नहीं बना सकते हैं? भगवान की टेक्नोलॉजी क्या है कि जस्ट चैंट हिज नेम एंड यू आर इमीडिएटली कनेक्टेड विद गॉड. दिस इज व्हाट ही हैज डन. इसलिए हम लोग कहते हैं कि भगवान का नाम जो है उनका हॉटलाइन नंबर है, उनका हॉटलाइन नंबर है, राइट. सो नाउ इट इज ऑल्सो गिवन दैट कलयुग में देयर आर मेनी मंत्रास, एंड भगवान के कई नाम है, लेकिन कलयुग में एक महामंत्र है जो कि बहुत इफेक्टिव है कनेक्शन, बहुत इफेक्टिव कनेक्शन है, बहुत अच्छे से कनेक्ट होते हैं भगवान के साथ महामंत्र से. जस्ट लाइक एक एग्जाम्पल ये है कि दवाइयाँ होती है ना, तो लेकिन दवाइयाँ जब भी हम लोग दवाई लेते हैं, मेडिकल वगैरह जाते हैं, तो एक चीज हम लोग चेक करते हैं. क्या चेक करते हैं हम लोग? एक्सपायरी डेट. एक्सपायरेशन, एक्सपायरी डेट. बिकॉज एक्सपायरी डेट के बाद मेडिसिन की इफेक्ट कम हो जाती है या जीरो हो जाती है.
तो उसी तरह से बहुत सारे भगवान के नाम हैं और सारे इफेक्टिव हैं, लेकिन कलयुग के आने से जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा वो उसके विषय में दिया हुआ है। एक मंत्र है कली शंत्र उपनिषद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडश का नाम, षोडश यानी 16 शब्दों वाला, इति षोडश का नाम कली कल्मष नाशनम, नातः परतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। सारे वेदों में ढूंढने के बाद ये निष्कर्ष आया है, नातः परतर उपाय, और कोई उपाय नहीं है। ये जो महामंत्र है सबसे ज्यादा इफेक्टिव है कलयुग में। सो विल अदर दूसरे नाम भगवान के हेल्प करेंगे? श्योरली करेंगे, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बट इफ यू वांट मैक्सिमम बेनिफिट, then this is the महामंत्र for this age, स्पेशली प्रिस्क्राइब्ड। जैसे मेडिकल में जाते हैं तो कई दवाई दे देंगे वो मेडिकल वाला, लेकिन डॉक्टर के पास जाएंगे तो गिव अ प्रेस्क्रिप्शन डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से। तो सो दिस महामंत्र इज द मेडिसिन फॉर दिस एज। So if you want to connect, so this is the best way to connect with God, right? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So this is about it, right? So it doesn't matter who we are, it doesn't matter where we are, it doesn't matter gender, age, class, doesn't matter rich, poor, doesn't matter what our problems we are in. Just add Krishna into your life and right, continue your studies, business, job, everything. कृष्ण को अगर जोड़ दे हमारे जीवन में, तो then you see the magic of what happens, right? So this is a message which I can give right now. Yeah. So if there is some time for questions, I can take some questions. मैं बोलने वाली थी क्वेश्चन 3 के लिए अलग एक और सेशन करना पड़ेगा हमको शायद। सबसे कॉम्प्लिकेटेड भी है, बट आपने बहुत ही अच्छे से आपने समझाया, बहुत ही। मेरे तो कुछ क्वेश्चंस है, बट मुझे मनीष और लीना को इनवाइट करना था। इन दोनों ने वॉलंटियर किया था और इनके पास काफी कुछ सिनर्जाइज करने के लिए कुछ बोलने की रिक्वेस्ट है। नमस्कार प्राणेश्वर दास जी। नमस्कार। बहुत अच्छा और सुंदर तरीके से आपने सारी कुछ चीजें समझाई है और बहुत सरल भाषा में समझाई है, तो मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। पहली बात, मैं आपकी बात से, सारी बातों से सहमत भी हूँ। कोई इसमें विरोधाभास भी नहीं है। मेरा प्रश्न या मेरी जिज्ञासा जो थी वो ये है, और वो शायद आई डोंट नो बाकी सब सहमत हो गए कि नहीं, कि जैसे अपन बोलते हैं कि आप ये अच्छे कर्म करेंगे या जो भी कुछ होगा तो आपको स्वर्ग मिलेगा या आप मोक्ष जाएंगे, या इवन आई थिंक मतलब कुछ अच्छी चीजें मिलेंगी। जैसे आई थिंक, मुझे आई डोंट नो मच अबाउट मुस्लिम्स, बट जैसे बहुत हूरें मिलती है, तो वॉट एवर दे डू, इफ दे डू गुड डीड्स दे विल गेट समथिंग बेनिफिट, बट दैट इज ऑल आफ्टर लाइफ। तो मुझे ऐसा जिज्ञासा है कि सारे धर्मों में लगभग ये क्यों है कि आपको मृत्यु के बाद ही कुछ चीज प्राप्त होगी। If I am doing good deeds, I want to see them now in this present life only. Na? That is one of the things that I feel is lacking in all the religions, and I am trying to find an answer to this question: कि why I cannot get that thing which I am looking for now only after doing all the good deeds? Why should I have to wait till my death and afterlife? Yeah, good question. Very nice question. Yeah. Thank you, Manish ji. Thank you very much for this question and for your kind words also. तो मैं प्रयास करता हूँ आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए, जो मैंने सुना है और जो मैंने पढ़ा है श्रील प्रभुपाद जी के बुक्स में। तो ऐसा है कि भगवान कहते हैं गीता में कि कर्म का ये जो लॉ ऑफ कर्मा है, ये गहना है। गहना मतलब इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स, बिकॉज देयर आर इनफाइनाइट सोल्स एंड इनफाइनाइट इंटरेक्शंस एंड सो मेनी फैक्टर्स आर देयर, जिसके ऊपर निर्भर करता है कि हमें कब फल मिलता है। और ऐसा नहीं है कि वो हमेशा हमें बाद में मिलता है, आफ्टर लाइफ। नो, देयर इज समथिंग कॉल्ड इंस्टेंट कर्मा आल्सो।
है ना, समटाइम्स आप अगर थोड़े से गूगल में वीडियोस देखेंगे कुछ, यू जस्ट टाइप इंस्टेंट कर्मा, यू विल गेट लॉट ऑफ वीडियोस। देखा है। जी जी जी। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड इंस्टेंट कर्मा, एंड हो सकता है कि इसी जीवन में हमें कुछ चीजों का कर्म फल मिले, राइट। ये पूरा साइंस है, इट्स अ साइंस, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन दैट साइंस। यू कैन गेट रिएक्शन, दो तरह के रिएक्शन होते हैं, पाप और पुण्य, राइट। जो कुछ एक्टिविटीज होते हैं जो प्रोहिबिटेड होते हैं, राइट। तो लॉस आर मेड बाय गॉड, जस्ट लाइक हम किसी भी कंट्री में, फॉर एग्जांपल इंडिया में, गवर्नमेंट मेक्स द लॉस, पब्लिक कैन नेवर मेक लॉस, गवर्नमेंट विल मेक, दोज हु आर रूलिंग दे विल मेक। तो सिमिलरली गॉड मेक्स, तो लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। वी कैनॉट इमेजिन what is a country or a system or an organization without laws. होने ही चाहिए कुछ, लॉ एंड ऑर्डर जहां नहीं है वहां केओस होगा, राइट। तो therefore the law of karma is also there, which is made by God. एक छोटा सा जोक है कि एक व्यक्ति जो है वो गाड़ी चला रहा था और लाल लाइट था, रेड लाइट था ट्रैफिक में, लेकिन ही क्रॉस द रोड। तो अगले जहां जैसे क्रॉस किया तो एक ट्रैफिक हवलदार ने रोक दिया उसको और बोला कि आपने लाल बत्ती नहीं देखी क्या? उसने कहा कि लाल बत्ती तो देखी थी मैंने, लेकिन आपको नहीं देखा। तो थिंग इज दैट अगर वहां पे कहीं पर भी बोर्ड लगा दिया जाए कि कृपया जो है आप ट्रैफिक के नियमों का पालन कीजिए, इससे चलने नहीं वाला है। देयर हैज टू बी लॉज इन प्लेस। So therefore the law of karma is there, right? Very simple. In one sense it's very simple, but it's very complex. As you sow, so shall you reap. So this is a law. Now the thing is कि there are a lot of factors जिसके कारण instant कर्मा मिल सकता है, या थोड़ी देर के बाद मिल सकता है, इस लाइफ में मिल सकता है, इस लाइफ के बाद वाले लाइफ में मिल सकता है, या फिर many लाइफ टाइम्स के बाद मिल सकता है। तो आई कैन गिव वन स्मॉल स्टोरी जिससे ये थोड़ा सा क्लियर होगा, राइट। तो धृतराष्ट्र के विषय में बताया जाता है कि धृतराष्ट्र अंधे पैदा हुए, विच वॉज अ ग्रेट प्रॉब्लम फॉर हिम, क्योंकि अगर अंधे पैदा नहीं होते तो फिर वो ये वॉर का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता। इन वन सेंस धृतराष्ट्र राजा बनते और उसके बाद दुर्योधन बनते। धृतराष्ट्र अंधे पैदा हुए एंड उनके 100 बच्चे मारे गए। तो लड़ाई के बाद, कुरुक्षेत्र की लड़ाई के बाद उन्होंने पूछा भगवान कृष्ण से, क्योंकि वो जानते थे कि कृष्ण भगवान है। जब शांति दूत बनकर आए थे तो उस टाइम पे दर्शन, राइट, क्योंकि विराट रूप दिखा दिया था दरबार में भगवान कृष्ण ने, और वो धृतराष्ट्र देखे थे। धृतराष्ट्र रिक्वेस्ट किए कृष्ण से कि मैं देखना चाहता हूं, और भगवान ने कहा ठीक है दर्शन करो। तो वो जानते थे। तो धृतराष्ट्र ने पूछा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, कौन से ऐसे कर्म है मेरे जो कि मुझे अंधा पैदा होना पड़ा, और साथ में मेरे 100 बच्चे भी जो है वो मारे गए। तो तब भगवान कृष्ण ने कहा कि 50 जन्म पहले, 50 लाइफ टाइम्स बिफोर, आप एक शिकारी थे। उस टाइम पे आपने एक पक्षी को अंधा किया और उसके 100 बच्चों को मार दिया। वहीं पर एक साथ ये हुआ। इट वॉज वन एक्ट, किलिंग द मदर एंड किलिंग 100 चिल्ड्रन। तो भगवान ने कहा कि ये जो पाप कर्म था इसका फल आपको प्राप्त होना था। लेकिन तो तभी धृतराष्ट्र पूछते हैं कि 50 जन्म पहले मैंने किया तो तुरंत मिलना चाहिए था मुझे, तुरंत क्यों नहीं मिला, या फिर उसके अगले जन्म में मिलना चाहिए था, 50 जन्म क्यों लगे? द वेरी लॉजिकल क्वेश्चन, वेरी वैलिड क्वेश्चन। तो वहां भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें जो कर्म फल मिलना था वो ये था कि तुमने इस पक्षी को अंधा किया तो तुम्हें अंधा पैदा होना,
ये कर्मफल। और दूसरा कर्मफल था कि साथ ही साथ तुम्हारे 100 बच्चे मारे जाने चाहिए। लेकिन 100 बच्चे मरने के लिए 100 बच्चे होने भी चाहिए ना, और एक भी बच्चा होने के लिए पुण्य चाहिए। तो क्या हुआ कि 50 जीवन लगे तुम्हें उतना पुण्य इकट्ठा करने के लिए कि तुम्हारे 100 बच्चे हो सकते हैं। और जैसा ही वो पुण्य इकट्ठा हो गया तो तुरंत वो रिएक्शन वेट कर रहा। तो अगर पता होता कि ऐसा होने वाला है तो शायद वो धीरे धीरे पुण्य करता। बोलने वाली थी मेथड टू द मैडनेस है ना, ऐसे जैसे आपने बताया साइंस, देयर इज लॉट ऑफ This is only one factor, and way it's to Gahana. understand. Lord Krishna says it's Gahana, it's very complex. So भगवान ने कहा कि जैसे ही पुण्य इकट्ठा हो गया, then that reaction was waiting for you, and तुरंत वो रिएक्शन जो है आपको प्राप्त हो गया। In fact, I am also told that the reason why, I mean, there's a connection between Bali's death and Krishna's death. So, I am told that when Lord Rama, he killed Bali, तो Yeah. उसने मरते मरते कहा कि आपने मेरे को इतने चुपके से कैसे मारा, ये तो गलत है। तो मैंने उसी वक्त उसको कहा कि चिंता नहीं करो, बाद में द्वापर युग में तुम भी ऐसा ही कुछ करोगे। एंड लुक्स लाइक कि देयर वाज दिस ऋषि जिसको बेवकूफ बनाया उसने कि ये लड़का है कि लड़की है, और वो अंदर गधा थी एक, तो मैंने गधा थी, और वो उसके लोगों ने पूछा कि बताओ ये लड़का है कि लड़की है, गर्भवती महिला। तो उसने कहा मेरा मजाक उड़ा रहे हो, अब यही गधा से तुम लोगों का संहार हो जाएगा। तो ऐसा सुना मैंने कि कृष्ण भगवान के जितने भी वो उनके लोग थे, वो गधा को चूरा चूरा करके फेंका नदी के पास, और वो घास बन गई, और वो घास को उखाड़ने से वो गधा बन गई, और फिर वो एक दूसरे को मार मार के मर गए। एक टुकड़ा जिसका वो टुकड़ा नहीं हुआ, वो किसी मछली ने खा लिया, और मछुआर ने फिर उसका एक तीर बना लिया, और जब कृष्ण भगवान सो रहे थे तो तीर से उसने मार दिया, और इस तरह से उसका बदला इस जन्म में पूरा हो गया। ऐसा भी कुछ कहानी सुनी। हाँ, वो ठीक है ना, ये स्टोरी अब ठीक पड़े हैं, सही बात। यस, तो आई मीन दैट्स लिटिल डिफरेंट टॉपिक। यहाँ पे कर्म का जो क्वेश्चन था, यू नो, दिस व्हाट आई ट्राई टू आंसर। या थैंक यू रावत जी। हाँ, लीना का हाथ उठा हुआ है, लीना को मैं इनवाइट करना है। जी 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 जी, यस लीना जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मेरा प्रश्न इतना है कि जैसे अपन जो बोलते हैं कि अगर हमने अच्छे कर्म किए तो हमारा पुण्य बढ़ता है, और अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं हुए तो हमारा पाप का फलदा बढ़ता है। ठीक है, तो ऐसा जैसे गणित में होता है कि प्लस प्लस माइनस कम करता है ना। तो अगर हमने पुण्य ज्यादा किए तो हमारे पिछले पाप भी कट जाते हैं, कि हमारे जो पापों का फल भी हमें मिलता है और पुण्य का भी फल मिलता है। राइट। पाप और पुण्य मिलके नलिफाई होते हैं, जीरो बन जाते हैं, कैसा पूछ रहे हैं आप? बन जाते हैं या नहीं? राइट। और उसको जो बोलते हैं ना, फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए क्या करना चाहिए? डबल डिप। जी, या बहुत अच्छा प्रश्न है आपका लीना जी। हाँ, तो जो शास्त्र में दिया है कि पाप और पुण्य का अलग अलग अकाउंट होता है, और दोनों नलिफाई नहीं होते हैं। बट जो पुण्य को तो कोई नलिफाई करना नहीं चाहता है। पुण्य पाप को नलिफाई करना चाहते हैं। पाप को जो है हम लोग, क्योंकि जितने सफरिंग आते हैं, जितनी तकलीफें आ रही है, हम सबके जीवन में तकलीफें हैं। ऐसा कोई भी नहीं है जिसके जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं है, हो ही नहीं सकता। राइट, कोविड ने सिद्ध कर दिया। राइट, तो अब बात यह है कि जितनी सफरिंग्स आ रही हैं वो पाप के कारण आ रही है, और पाप भी अलग अलग तरह के हैं, रिएक्शंस है। स्मॉल रिएक्शंस है, सूक्ष्म स्मॉल, मीडियम रिएक्शंस है, और हैवी रिएक्शंस है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट एक्शंस हमने किए हैं, कौन सा पाप हमने किया है। तो जो छोटे छोटे होते रिएक्शंस पाप के,
वो हमारे सपने में आते हैं। सपने में कोई शेर हमारे पीछे पड़ता है, कोई कुछ हम डूब रहे हैं या कुछ हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है सपने में, और जब तक उठते नहीं है तब तक वी आर सफरिंग इन द ड्रीम। तो ऐसा दिया हुआ है, जितने जितने सटल रिएक्शंस है दे आर गिवन इन द ड्रीम्स। एंड जो सटल पुण्य है वो भी ड्रीम्स में है ना, 1 करोड़ का वो आएगा, फायदा होगा, लेकिन सपने में होगा। जैसे ही उठा तो खेल खत्म। हाँ, राइट। तो अब बात यह है कि अगर सफरिंग कम करनी है हमें, तो हमारे जो पाप वाले रिएक्शंस हैं उन्हें हमें जलाने पड़ेंगे, उन्हें खत्म करना होगा। उसे 2 तरीके हैं खत्म करने के। तो एक तरीका है, और इम्परफेक्ट तरीका है, अच्छा तरीका नहीं है, वो है प्रायश्चित। आपने ये शब्द जरूर सुना होगा सब लोगों ने, प्रायश्चित। तो पहले सिस्टम था, दिस इज अ वेरी साइंटिफिक सिस्टम, प्रायश्चित। तो अभी कल्चर नहीं है, इसके लिए नहीं हो रहा है, लेकिन पहले कल्चर में था कि लोग कम से कम जब राइट ओल्ड एज में जाते थे, ब्राह्मणों के पास जाते थे और पूछते थे कि मैंने ये किया, जैसे कन्फेशन होता है ना क्रिश्चियनिटी में, वैसे कन्फेस करते थे और कहते थे कि ये मैंने किया है, थोड़ा शास्त्रों में देखो इसका प्रायश्चित क्या है। तो वो ब्राह्मण जो है वो अपना राइट शास्त्र निकल, धर्म शास्त्र निकालते थे, और उसमें लिखा होता था कि इफ यू हैव कमिटेड दिस सिन देन दिस इज द प्रायश्चित, इफ यू हैव कमिटेड दिस सिन दिस इज द प्रायश्चित। सो दिस वाज वन वे कि अगला जीवन में बहुत ज्यादा सफरिंग ना आए। बट दिस इज एन इम्परफेक्ट वे। व्हाई? बिकॉज प्रायश्चित करने के बाद अगर पाप नलिफाई भी हो गए, फिर भी पाप करने की प्रवृत्ति जो है वो खत्म नहीं होती थी। इट्स लाइक सपोजिंग कोई स्नान कर ले लेकिन फिर आके धूल डाले अपने ऊपर, तो व्हाट इज द यूज? मंडे टू सैटरडे आप पाप करो, संडे जाके कन्फेस करो चर्च में, और फिर मंडे टू सैटरडे फिर पाप करो, फिर कन्फेशन, क्योंकि कन्फेशन से पाप नलिफाई होते हैं क्रिश्चियनिटी में, वो जो सिस्टम है। सो व्हाट इज द यूज अगर पाप करने की प्रवृत्ति जो है वो खत्म नहीं हो रही है तो? सो देयरफॉर द सेकंड एंड इजी वे of destroying reactions very scientifically is bhakti, Krishna bhakti, Vishnu bhakti, Ram bhakti, भगवान की भक्ति। मुझे ये कल लोकेश, सॉरी टू इंटरप्ट, लोकेश और मनीष ने बड़े अच्छे से समझाया था कि दैट इज लाइक यू रिप्लेसिंग सम अनहेल्दी बिहेवियर विद अ हेल्दी बिहेवियर। Exactly. इस तरह से समझ सकते हैं इसको। तो मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि अम्बा भी बैठी है, साइकोलॉजिस्ट हमारे बैच की, तो इसमें और सीबीटी में मैं पीडियाट्रिशियन हूँ, तो हम आजकल बच्चों को काफी जो ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स और कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, कैटास्ट्रोफाइजिंग, ये सब हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको समझा के इसी तरह से उसको हम निकाल लाएं, उनको एंजाइटी। नोबल वर्क। हाँ, तो उसके बारे में आप बता सकते हैं कि साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी की पैरेलल, जैसे आप जो एक्सपीरियंसेस भी बता रहे हैं, या क्रिमिनल या पैथोलॉजी, जो उसको रिजॉल्व करने के लिए पूरा साइकोलॉजिकल प्रोसेस भी होता है, उसको स्पिरिचुअलिटी से कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं? या सो मैं जैसे मैंने कहा, आई जस्ट फिनिश लीना जी's क्वेश्चन बाय सेइंग कि अगर हम लोग भक्ति करते हैं, भक्ति यानी बहुत सारी चीजें हैं भक्ति में, बहुत सारे एक्टिविटीज है, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण एक्टिविटी है वो है चैंटिंग, भगवान का नाम लेना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो इसलिए IITians भी चैंट कर रहे हैं, डॉक्टर्स भी चैंटिंग करते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं इंडिया में जो चैंटिंग करते हैं। ये रोज ये महामंत्र हम लोग 16 राउंड्स करते हैं, 16 माला, राइट। एंड दिस ऑल महामंत्र के ऊपर PhD वो भी हुआ है, रिसर्च हुआ है, द इफेक्ट ऑफ महामंत्र एंड ऑल, क्लिनिकल रिसर्च जैसे है ना वैसे भी हुआ है। वी हैव टॉपिक्स आल्सो लाइक दैट। सो दिस इज द बेस्ट वे टू डिस्ट्रॉय 2 थिंग्स, एक पाप के रिएक्शंस और दूसरे पाप करने की प्रवृत्ति भी खत्म हो जाती है। इसलिए जब इस्कॉन में आते हैं लोग, तो विद इन अ शॉर्ट टाइम people give up so many bad things, so many bad habits, and they cultivate good habits.
Yeah, so this is just to finish Leenaji's question. I'll come to your question कि कैसे psychology and spirituality can they be connected? Definitely they can be connected because everything is connected with God. There is no field in science which is not connected. There is no field. Why? भगवान कहते हैं गीता में 7वें अध्याय में, है ना, तीसरे श्लोक में कहते हैं भूमि रपो अनुलो वायु खम मनो बुद्धि रे बचा अहंकारा इतियम में भिन्न प्रकृति दष्टधा. हे अर्जुन, भूमि, अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्पेस, they are my energies. And there are others. So there are 24 tattva hai, 24 elements which are there in this world, and they are all coming from Krishna. Krishna is saying that these are my energies. So everything in this world is connected with Krishna because they are Krishna's energies. Bhagavan ki energies hain. And we can even we have a wing called Bhaktivedanta Institute in ISKCON, जो कि scientific research कर रहा है in this area, right? So now there is definitely a psychology and this thing, spirituality, they are connected. How they are connected? Spirituality makes the mind very strong. Plus, spirituality purifies the intelligence. Spirituality gives people a reason to face calamities and be strong during calamities. जो 6th चैप्टर है भगवत गीता का, उसमें माइंड कंट्रोल के विषय में पूरा दिया हुआ है. अर्जुन कह रहे हैं चंचला ही मना कृष्णा प्रमति बलभद्रिडम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुर एवासु दुष्करम. हे कृष्ण, ये मन इतना चंचल है. What psychology is about, right? Mostly about the mind, how the mind works and all like that. I mean, this is what I understand. You are a better authority on that, right? So Krishna says that yes, Arjun, chanchal hai man, balavat, strong hai, drid hai. Everything you are saying is true. Shri Bhagavanu Vacha. What is that? I'm forgetting the first line. Asamshayam Mahabaho. Asanchayam Mahabaho. Manas Durnigraham Chalam. Abhyasena tu kaunteya vairagena chigrayate. हे अर्जुन, आप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि ये मन के प्रॉपर्टीज हैं, ये मन का स्वभाव है, ये मन चंचल है, मन यहाँ वहां भागता है, दृढ़ है, जिद्दी है, ये सब चीज है. लेकिन there are two, he gives two solutions for mind control. अभ्यासेन तु कौन्तेय, through suitable practice. अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन चिग्रह्यते. वैराग्य, अभ्यास और वैराग्य. So do's and don'ts. If we follow some do's and don'ts, then one can control one's mind. Right? So definitely both are connected. Yes. तो उससे मुझे जी, हाँ, sorry, नहीं, not very to, big subject. हाँ, मैंने right, थोड़ा सा मैंने right. I was going to say, the tip of the iceberg. बिल्कुल हम लोग ये टॉपिक पे वापस से बात कर सकते हैं, क्योंकि मैं ये समझना चाह रही थी कि बच्चों में जैसे डेवलपिंग माइंड है, देयर इज लॉट ऑफ फेजेस दे गो थ्रू, तो किस फेज में ओपननेस रहती है इस बात को इंटीग्रेट करने की, क्योंकि छोटे हैं तो वो कॉपी कैट कर सकते हैं, पर जो बड़े हो जाते हैं दे हैव देयर ओन रीजनिंग, देयर ओन ऑटोनॉमी. तो उस रिवर्स साइकोलॉजी, sorry to interrupt you, there is something called Vedic psychology. So I can forward it to Dr. Lokesh and बिल्कुल, क्योंकि हम जनरली देखते हैं जैसे पेरेंट्स ने बोला या ग्रैंड पेरेंट्स ने बोला, बच्चे नहीं एक्सेप्ट करते हैं इजीली. हाँ, उनको थोड़ा रोल मॉडलिंग से, एग्जाम्पल से, ज्यादा बोलने से नहीं होता है. तो मैं उसके बारे में, तो अम्बा एंड मुझे जूजर से भी पूछना था. जूजर भी कुछ बोलना, ऐड करना चाहे. Anjeev has raised his hand. Anjeev can. हाँ, go ahead, Anjeev. sorry, I didn't mean to. मुझे वहाँ लीना का हाथ दिखा था. अंजीव, your turn. मेरे को महाराज जी से पूछना था कि जैसे हिंदू धर्म में बहुत सारे पंथ हैं, सब लोग एक दूसरे
फॉलो करते हैं, और अल्टीमेटली कोई एक दूसरे का विरोध नहीं करता है। सबको जी यही पता है कि जिधर से भी जाएंगे अल्टीमेटली रास्ता वहीं पहुंचना है। परंतु बहुत सारे ऐसे भी धर्म हैं जैसे कि वो लोग ये मानते हैं कि हम ही सही है और हमारे अलावा बाकी सब गलत है। जी और आज के पूरे वर्ल्ड का जो अशांति का मेन कारण भी यही है। यदि हाँ सब लोग मान लें एक दूसरे को कि जो जिस रास्ते से जा रहा है वो हाँ अल्टीमेटली एक ही रास्ते में पहुंचेगा और सब भी उस डिवाइन आत्मा में मिल जाएंगे, तो सारा हाँ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इसका जी समाधान आपके हिसाब से आज की तारीख में क्या है? जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न है संजीव जी। तो आपने जो प्रश्न पूछा है वो बड़े फ्रैंकली पूछा है, मैं भी फ्रैंक आंसर दूंगा, राइट। इसलिए इस प्रश्न का तो ओपन माइंडेड थोड़ा सा रहिएगा प्लीज, मेरा ये रिक्वेस्ट है आपसे, है ना। हाँ। तो अब मैं आपसे अगर ये पूछूं कि संजीव जी, आपके बच्चे को अगर आपको स्कूल डालना है और मैं कह दूं कि सारे स्कूल एक है, सारे स्कूल एक है, सारे कॉलेज एक है, जहां पर भी पढ़ो आप पीएचडी बन जाओगे, क्या आप बात ये आप मान लेंगे? आप, मैं आपसे ये कह दूं कि सारे डॉक्टर एक, किसी भी डॉक्टर के पास जाओ आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। इज दिस इज इट अ फैक्ट? नहीं, गलत। मेरे हिसाब से एग्जैक्टली तो गलत है। एग्जैक्टली सो सब कुछ एक नहीं। आज मैं अगर कटार के लिए प्लेन पकड़ूं तो कटार पहुंचूंगी, लेकिन अगर मैं यूएस के लिए प्लेन में चढ़ूं तो कटार नहीं पहुंचने वाला, मैं यूएस पहुंचूंगा। सारे रास्ते जो है वो राइट, व्हेन भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं राइट कि ऑल पाथ्स लीड टू मी, लेकिन उसका हमें सही व्हाट इज दैट अंडरस्टैंडिंग हमें होना चाहिए। तो व्हाट इज दैट अंडरस्टैंडिंग? दैट अंडरस्टैंडिंग इज यस, इन वन सेंस सारे रास्ते जो है भगवान तक पहुंचेंगे, लेकिन कुछ रास्ते जो है वो बहुत कठिन रास्ते हैं और कुछ रास्ते डायरेक्ट रास्ते हैं। बच्चे को समझाने के दो रास्ते हैं, या बच्चे को समझने का दो रास्ता है। एक रास्ता है कि मम्मी डैडी जो बोल रहे हैं वो करें, वो आसान रास्ता है, क्योंकि मम्मी डैडी सबसे बेस्ट और इजीएस्ट रास्ता बताएंगे, कैसे पढ़ाई करके आप अच्छा जो है एक इंसान बन सकते हैं। दूसरा रास्ता है ठोकरे खा, लेकिन वो अच्छा रास्ता नहीं है, दैट इज नॉट अ गुड रास्ता। सो सिमिलरली वी कैनॉट से एवरीथिंग इज वन, नो। आईआईटी अगर ये कहता है कि वी आर द बेस्ट इन इंडिया फॉर एजुकेशन, आर दे रॉन्ग? यस, नो। आईआईएम अगर जरूरी ये नहीं। कहता है, आईआईएम अहमदाबाद अगर ये कहता है कि राइट नाउ वी आर द बेस्ट, राइट नाउ वी आर द बेस्ट इन इंडिया फॉर मैनेजमेंट स्टडीज, राइट? सो इज दैट रॉन्ग? दैट इज नॉट रॉन्ग। नाउ it's not that IIM is the only place where management can be learned, IIT is the only place where engineering, नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे संस्थाएं हैं जो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है जहां पर इंजीनियरिंग सीख सकते हैं, लेकिन साथ साथ में बहुत सारे फ्रॉड ऐसे यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस भी हैं जो यूजीसी सर्टिफाइड नहीं। इन इंडिया यूजीसी होता है ना, यू मस्ट बी नोइंग, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। तो यूजीसी अभी हाल ही में उन्होंने जो है बहुत सारे फ्रॉड कॉलेजेस को पकड़ा। तो अब बात यह है, जब हम अपने बच्चे को एडमिशन में डालेंगे स्कूल या कॉलेज में, हम ये देखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो सर्टिफाइड है कि नहीं बोर्ड से, हम ये देखेंगे। अगर कोई स्कूल ये कह दे सारे स्कूल एक है, आप इधर आ जाओ अपने बच्चे को यहाँ डाल दो, क्या हम मानने वाले? हम नहीं मानने वाले। हम तो चेक करेंगे, और हमें चेक करना भी चाहिए, दैट्स नो प्रॉब्लम। हम चेक करेंगे एंड देन वी विल राइट सी नॉट ओनली सर्टिफाइड, वी विल सी वहां रिजल्ट अच्छा है कि नहीं, वहां स्टाफ अच्छा है कि नहीं, वहां सारी सुविधाएं हैं कि नहीं। वी विल सिलेक्ट द बेस्ट। एंड इफ समबडी सेज राइट कि ये आपका स्कूल कैसे कह रहा है कि आप बेस्ट हैं, सारे स्कूल कहते हैं कि हम बेस्ट हैं, अब हम क्या करें? नो, वी विल चेक। इवन इफ 10 स्कूल ये कहते हैं यू आर राइट,
They will say कि I am the best, but we will check and we should check. We use our intelligence वहां पर कि एक अच्छा स्कूल यानी क्या है, ये रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, फैकल्टी अच्छी होनी चाहिए, सुविधाएं अच्छी होनी चाहिए, क्लासरूम्स होने चाहिए, ये है वो रिसोर्सेस होने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, टीचर्स जो है वो सही होने चाहिए. We use our intelligence. So similarly, if right, so कुछ संस्थाएं कहती हैं कि हाँ, right, we are proper, you know, we should check. And कुछ स्पिरिचुअल संस्थाएं हैं जो सच में बोनाफाइड नहीं है, सच में फ्रॉड है. वो क्या कहते हैं, वो क्या करते हैं, अपने गुरु को भगवान बना देते हैं, राइट. और कितनी चीटिंग होती है. ये जो इंडिया की जनता है वो इतनी भोली वाली जनता है कि बार बार जो है वो फंसती है. So there are some fake babas and gurus, and there are some proper institutions also. So there is this is also a science. Almost like human psychology को लोग they tap into human psychology, ऐसा लगता है. They tap into human psychology. They take advantage. चमत्कार को नमस्कार, थोड़ा सा चमत्कार दिखा देते हैं और कहते हैं हम भगवान हैं, आप आओ और सब कुछ समर्पित कर दो. Very unfortunate. Cheat. There are two kinds of cheaters in spirituality. One is those who proclaim themselves as God. If no, इनका कोई भी अवतार जो है वो अपने आप को अवतार नहीं कहते, जो जेन्युइन अवतार है. ये शास्त्र में दिया है. प्रोफेसर और टेक्स्ट बुक जो है मैच होना चाहिए. गीता और भागवत में क्या दिया है वो अगर कोई गुरु पढ़ा रहा है तो फिर वो बोनाफाइड गुरु है. गीता में भगवान कह रहे हैं कृष्ण कि मैं भगवान हूं, और ये गुरु आके अगर कह रहे हैं कि नहीं नहीं कृष्ण भगवान नहीं, मैं भगवान, तो इट्स चीटिंग. द फर्स्ट काइंड ऑफ चीटिंग इज आई एम गॉड. द सेकेंड काइंड ऑफ चीटिंग इज एवरीवन इज गॉड. दिस इज देयर इन स्पिरिचुअलिटी. बहुत सारे संस्थाएं ये कहते हैं आप ही भगवान, and this is cheating because this doesn't match the textbook. In the textbook गीता ने ये नहीं दिया है. हम लोग किसी के कहने पर, राइट, कोई प्रोफेसर अगर कुछ टेक्स्ट बुक के विरोध बोल रहा है, then how can we just accept that professor? It has to match, right? So this is आपका turn. I've just spoken a little frankly, so please don't mind. नहीं, मेरा कहना है जैसे कृष्ण भगवान अपने जमाने में वो भी गुरु ही थे. जब उन्होंने बोला कि मैं भगवान हूँ, तो वैसे ही आज के जमाने में जो गुरु हैं बोल रहे भगवान है, तो उसमें गलत क्या है? तो फिर हम ये कहेंगे दे हैव टू प्रूव. कृष्ण जो है, कृष्ण गुरु, कृष्ण पहले भगवान है उसके बाद गुरु है. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग इज, अगर कोई ये कह रहा है कि मैं भगवान हूं तो उन्हें सिद्ध करना होगा. कृष्ण जो है गोवर्धन उठाए, वो कोई एक स्टूल उठा दे 7 दिन के लिए, हम मान जाएंगे, राइट. भगवान ने बहुत सारे ऐसे सुपर ह्यूमन चीजें की. वो छोटा सा सोने का नेकलेस नहीं उठाया, सोने के खान बनाए भगवान ने. तो भगवान की जो एक्टिविटीज है वो अगर कोई करके दिखा दे, विराट रूप दिखा दिया, दिखा दे विराट रूप. बहुत सारे ऐसे चीजें हैं. हमारा राइट ओमनीपोटेंट दिखा दे, ओमनी प्रेजेंट दिखा दे, ओमनी साइंट जो है ये चीजें हैं वो दिखा दे. हमारा मन पढ़ के दिखा दे. कोई कह रहा है कि मैं भगवान हूं, ठीक है चलो ये बताओ, राइट. They won't be able to. No one has done that. And अगर even if somebody does that, that also does not mean that they are God. जो लाइट कमेंट होता है कि डॉक्टर्स को काफी सुनने में मिलता है कि आप तो भगवान के रूप बन गए हमारे लिए. That's काफी fine, जिनकी जान बचाई जाती है, तो ये भी काफी कॉमन. That is a different thing. That is a different thing. हाँ, तो जब हम के प्रतिनिधि हम बन सकते हैं. हाँ, हम भगवान के प्रतिनिधि. Even a doctor has to say at the end कि अब भगवान ही बचा सकते. जैसे क्रेडिट देना चाहिए सही जगह पे जहाँ पे है. तो आई अंडरस्टैंड. मुझे लग रहा है अंजीव का क्वेश्चन मुझे भी थोड़ा समझ आ रहा है कि हम लोग हमारी अपब्रिंगिंग में कहते हैं कि दूसरों में भगवान का रूप देखें. आपके आसपास सभी भगवान के रूप होते हैं पीछे. तो डॉक्टर्स
we have to give full credit to them. We give full credit to the doctors. नहीं, But it's डॉक्टर not के अलावा doctors भी are- बहुत लोग पायलट भी जान बचाते हैं, ट्रेन हाँ, वो ड्राइवर भी ठीक है, जान वो बचाते हैं, ठीक है। सभी लोग जान बचाते हैं, काफी लोग But we all have problems. Doctors don't have problems? बिल्कुल बिल्कुल। Plenty, right? Everybody has problems. हाँ, तो वो क्वेश्चन हमारे जो थर्ड क्वेश्चन था उसमें काफी कवर हो सकता है, जब हम लोग Why not? काफी लोग जो रेजिस्ट करते हैं कि एक्सेप्टिंग वन फॉर्म ऑफ गॉड, तो अलग अलग जो प्रकार है उसमें। और राइट, कभी कभी लोग हमसे ये भी कहते हैं कि क्या है ये इस्कॉन सिर्फ कृष्ण को पकड़ के बैठे हैं, ये भी बोलते हैं लोग। नाउ दिस इज नॉट जस्ट आउट ऑफ सम कि कृष्ण मेरे फेवरेट इष्ट है या भगवान, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज अ फैक्ट। तो अम्बा का क्वेश्चन एक और, सॉरी टू इंटरप्ट, पर कुछ लोगों को शायद टाइम, लोकेश की भी क्लास है उसने मेंशन किया था, तो हम एक अलग सेशन जरूर करेंगे एक और क्वेश्चन एंड आंसर का। आई विल बी हैप्पी टू सर्व। हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन एंड आंसर्स ओनली करेंगे। अम्बा, हाउ अबाउट वी रैप अप विथ योर क्वेश्चन? थैंक यू, बहुत ही अच्छा आपने बताया। सिर्फ मेरा एक सवाल था, एक तो ये जरूर रिक्वेस्ट है कि जो माइंड कंट्रोल का चैप्टर है उसको हम एक स्पिरिचुअल व्यू से और डिटेल में किसी दिन, जिस समय थोड़ा ज्यादा समय हो, उसको एक श्लोक के साथ अच्छे से डिटेल में करें तो बहुत अच्छा लगेगा। और एक जो सवाल है कि जैसे गीता में भी ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग तीनों का उल्लेख है, तो would you consider anyone superior or all the paths are again similar, or is anyone superior to the other? My PhD thesis is on yoga ladder. Beautiful. So I'm doing my PhD thesis on this कि कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग और भक्ति योग, ये एक like a ladder, and this is a PhD thesis topic. Sometime maybe later on we can discuss this also. हम लोग ने बुक कर लिया, आपको एटलीस्ट 2-3 सेशन तो और लगेंगे। एटलीस्ट ये बहुत कम है। Dr. Lokesh can just see that I would सर आंसर तो दे दो कि कौन सा बेस्ट है आंसर। Okay, fine, okay. So just one word. Okay, Bhakti Yoga is the best and easiest and fastest. मैं सोच ही रही थी आप भक्ति बोलेंगे। हम लोग सब कर्म में पड़े हुए हैं, हम लोग सब कर्म में लगे हुए हैं, हमको थोड़ा जो भी कर्म योग में है, ज्ञान योग में है, अष्टांग योग में है, वो सारे चीजें भक्ति में ऑलरेडी है। या अभी मैं इतना ही कहूंगा, नहीं तो ये थीसिस टॉपिक हमको थोड़ा सा डिटेल में किसी समय जरूर बताइएगा। श्योरली आई वुड बी हैप्पी टू शेयर। कर्म योग को लोग बताते हैं कि आसान है और उससे सब कुछ मिल सकता है। आज की तारीख में ज्यादा प्रैक्टिकल है, गीता में भी यही लिखा है कि कर्म योग सबसे आसान है। अंजित जी कर्म का एक मैं एग्जांपल, सॉरी टू इंटरप्ट, कर्म का मैं एक एग्जांपल बताऊं कि अगर आपने डोनेशन दिया किसी को और उस डोनेशन आपने जो दिया उस पैसे से अगर उसने दारू पी लिया तो उसका पाप आपको लगेगा जिसने डोनेशन दिया है। ये आपका कर्म का नुकसान आपको हुआ और आपको उसका पाप लगा। तो दिस इज हाउ वी डैमेज आवरसेल्व्स बाय ओनली फोकसिंग इन कर्म योग। जी प्रभु जी। एंड कर्मयोग क्या है ये भी देखिए, जनरल नॉलेज इज वन थिंग। सपोजिंग फॉर एग्जांपल, अगर मेरे से कोई बच्चा आके पूछे कि थोड़ा कुछ मेडिकल ज्ञान दे सकते हैं क्या, तो मैं दे सकता हूं बहुत कुछ, लेकिन आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम एन इंजीनियर, आई एम नॉट अ डॉक्टर। तो मैं तो बुक भी लिख सकता हूँ उसके ऊपर, मेडिकल साइंस के ऊपर, एंड वो एक्सेप्ट भी होगी, बहुत सारे लोगों को अच्छा भी लगेगा और वो सोचेंगे कि ये क्या लिखा है बुक, वाह। लेकिन जो मेरा सामान्य ज्ञान है, जनरल नॉलेज है, वो सही नहीं हो सकता। सही हो सकता है कभी कभी सही नहीं भी हो सकता, लेकिन जो साइंटिफिक ज्ञान है वो एक डॉक्टर दे सकता है। तो सिमिलरली कर्मयोग क्या है, इसका जो जनरल नॉलेज है और एक्चुअल कर्मयोग क्या है, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। जो जनरल नॉलेज वो ये है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, और हो गई भगवत गीता, बस दैट्स इट, फिनिश। व्हाट इज भगवत गीता?
people feel कर्म करो फल की चिंता मत करो, हो गई भगवत गीता. भगवत गीता is much more complex and कर्म योग is much more complex. कर्म योग के ऊपर थीसिस है, थीसिस. बिल्कुल. तो हमको लगता है कि ये जैसे आपने रात भर डिस्कशन किया था, ऐसे हो सकता है हम लोग भी शायद कुछ घंटे, बहुत इम्पोर्टेंट चीज है. कुछ घंटे साथ में रहेंगे तब हम लोग इस चीज को और आगे परसीव करें. हम लोग ने आज ऐसे प्लान नहीं किया था, पर यदि कोई और रुकना चाहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. It's already 9 o'clock. I am very thankful again to Dr. Lokesh and all of you कि आप लोग ऐसे ये टाइम जो है इस चीज के लिए दिए हैं. नहीं, आपके आने के पहले मैंने बोला जरूर कि बड़ा हिम्मत वाला टॉपिक था ये, क्योंकि इसमें कंट्रोवर्सीज भी हो सकती है पर कंफ्यूजन भी बहुत रहता है, और ये एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज है थोड़ा हमारे लिए, थोड़ा साइंटिफिक. देखिए आप सब लोग इंटेलेक्चुअल्स हैं. यू आर ऑल इंटेलेक्चुअल्स. यू आर नॉट, मतलब यू आर हैविंग, यू आर सक्सेसफुल इन योर फील्ड्स एंड ऑल. तो एंड इतना एक्सपीरियंस वगैरह है सबको, आप सबको. तो सब परसेप्शन है हम सबका, पर वो जैसे मनीष बोलता है कि ये सब मिथ्या, हम लोग सब परसेप्शन में ही रह रहे हैं. तो वी विल डेफिनेटली वांट टू इवॉल्व इन सिनर्जी. हम लोग और पढ़ना. You will understand this very fast because you have, all of you have lot of intellectual capacity. तो जिनको intellectual capacity अच्छी है ना, तो वो अगर एक ओपन माइंड से अगर इसको अगर स्टडी करें, It becomes two-edged sword, right? जब नॉलेज होता है तो लोग थोड़ा रेजिस्ट भी करते हैं ऐसे. Yes, because they are analyzing it and they are yes. trying to question. तो नहीं, बहुत अच्छा रहा. और मेरे 3-4 क्वेश्चन मैं आपको दे देती हूँ, आप आंसर अगली बार करिएगा. Sure. इसमें जो होता है कि जो कॉल, लोग बोलते हैं कि वी हैव अ कॉलिंग फॉर इट, या कुछ लोग जब छोटे होते हैं तब से उनका इंक्लिनेशन रहता है इस तरफ, right. versus some who can develop it. तो उसके बारे में मुझे पूछना था कि वो किस तरह से होता है. और दूसरा जो ग्रुप वाली बात किसी ने पूछ ली ऑलरेडी कि इतने ज्यादा ग्रुप्स हैं और सभी का पर्पस ऑलमोस्ट सेम है, तो इतना मुश्किल क्यों है लोगों को to see the same goal and not to work, they're not able to work together. एक ये था. और दूसरा ये था कि जीरो रिमेन्स, हमेशा हमको सबको पता है हम मॉर्टल हैं, हमारा जीरो इज व्हाट विल गो अंडरग्राउंड एंड ये सब. तो उसको फिर हम कैसे एड्रेस करें बच्चों को, जब हम मोटिवेट करते हैं उनको, सबको सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सिखाया जाता है और सक्सेस की तरफ ले जाया जाता है, रेस टू नोवेयर. तो इन चीज को कैसे बैलेंस किया जाए कि हम लोग को पता है कि एट द एंड नथिंग रिमेन्स, पर फिर भी हमको थोड़ा जो होता है ऑलमोस्ट कि वी हैव टू हैव पर्पस एंड वी हैव टू हैव गोल्स. तो उसको कैसे बैलेंस किया जाए? जी, वंडरफुल क्वेश्चंस. सो इफ यू कैन सेंड इट टू डॉक्टर लोकेश, so whenever possible, then I would be happy to serve. Before we depart, just one question last finally, what is the purpose of life? What is the purpose of human life? इसको जरा थोड़ा सा quickly cover कर लें. और जुजैर और एक गायनेकोलॉजी, 2 जन नहीं बोल पाए हैं, तो मैं उनको भी थोड़ा जल्दी से कोई क्वेश्चन है. तो जुजैर, did you want to say anything? I will just thank Swamiji for such an excellent explanation. And what I personally believe is that yes, spirituality is a very deep down thing and everybody has to understand. Yeah. And believe me, irrespective of any religion, if a person is spiritual, he is never going to question any other religion or spirituality. Exactly. So that is my take on one of my colleagues' question, that all those people who, the moment they say that they are superior, they already lost the battle. So that is what we have to understand. And the day we understand that, I think other things will automatically fall in place. So that is my take on that. Yeah. I agree with this. So thank you once again. Thank you very much, Swamiji. Thank you. So Prabhuji, before we close down, just quickly recap on what's the purpose of human life. And we'll close there. Maybe we can cover it in the next session because just a quick recap and short titles. Okay, 2 sentences. Yeah.
राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल पर्पस रहना चाहिए. इमेजिन अ फुटबॉल फील्ड विदाउट गोल्स, राइट? तो वी कांट इमेजिन, राइट? अगर 22 लोग एक बॉल के पीछे दौड़ रहे हैं लेकिन गोल पोस्ट नहीं अगर, तो विल कॉल देम मैडमैन. तो गोल एंड पर्पस शुड बी देयर इन लाइफ, नंबर 1. सेकेंड थिंग इज, दूसरी बात ये है कि कुछ भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं सुबह से शाम तक, उनके 2 ही पर्पस हैं. कुछ भी, एनीबॉडी, एनी प्रोफेशन, एनी लाइफ, एनी बॉडी, देयर आर ओनली 2 गोल्स ऑफ लाइफ. तो ये शास्त्र में दिया हुआ है, परमानंद प्राप्ति एंड आत्यंतिक दुख निवृत्ति. देयर आर ओनली 2 गोल्स. एक, to obtain happiness. Second, to get rid of problems. These are the 2 goals of life, and this is possible by spirituality. So abhi ye short answer hai, so next time we can speak more on this. Very, very precise and very appropriate, Prabhu. Thank you very much. Very nice. I think it's time to express our gratitude to all to join this session, and especially to our speaker, Pranshul Prabhuji. Thank you very much for sparing this time and answering wonderful questions and taking a wonderful session. Thank you very much, Prabhuji. And a lot of questions we'll gather more questions, and maybe next time we'll just have a Q&A session. Why not? I'll be happy. Yes. मैं एक आखिरी क्वेश्चन लेके आ रही हूँ. Okay. बोला था कि ह्यूमन बर्थ के पहले डॉग बर्थ, एक डॉग का अवतार होता है बिफोर दे गेट ह्यूमन बर्थ. तो मुझे आंसर चाहिए था कि इज इट ट्रू और नॉट. Okay. So all questions you can just direct it to Dr. Lokesh. He'll send it to me, and then next time we will cover this question. बिल्कुल. Thank you. Namaste. Sure. Thank you everyone. Thank you very much. Thank you. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. जय श्री कृष्ण बोल. Jai Shri Krishna.